بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے قربانی کے گوشت کو رکھنے کا بیان، یعنی کہ باب فی حبس لحوم الاضاحی۔ تو یہاں پر فقہا احناف کے نزدیک قربانی کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ صدقے کے لیے اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے اور ایک حصہ دوست احباب کی ضیافت کے لیے۔ یہ جو طریقہ ہے یہ صرف مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر سارا گوشت بھی اپنے لیے رکھ لیا جائے تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے دے یا فروخت کر دے تو اس کی قیمت غریب کو دے دے، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسے اور جامعہ کو دے دیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کے فروغ کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح قربانی کی کھال کو اپنے استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، اسی طور پر اس کا جو عین ہے وہ باقی رہے، مثلا مسلح یا پھر رسی یا چھلنی بنائے تو درست ہے۔ قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی حرمت یا امام اور مؤذن یا پھر مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے، اور قربانی کی کھال قصائی کو اجرت میں دے دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا پھر چھین گئی، اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، قربانی پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو ثواب ایک بکری، تو پھر یہ کیا کرے، ایک بکری لے اور اس کی قیمت جو ہے وہ خیرات کر دے۔ اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو پھر بعین ہی وہی جانور خیرات کر۔ تو اب ہم حدیث کی عبارت دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا القانبشي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن امرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حجرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلثا وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون من زهاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك، أو كما قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا۔ دیکھیے یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بقرہ عید کے موقع پر جنگل کے رہنے والے کچھ لوگ آئے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا 3 دن کی ضرورت کے بقدر گوشت رکھ لو اور باقی صدقہ کر دو۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے پہلے لوگ اپنی قربانیوں سے نفع اٹھاتے تھے، ان کی چربی اٹھا رکھتے اور ان کی کھالوں کی مشکیں یا مشکیں بناتے۔ آپ نے فرمایا تو اب کیا بات ہوئی؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ نے 3 دن سے زائد گوشت رکھنے کی ممانعت فرما دی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو محض اس لیے منع فرمایا تھا کہ کچھ مسکین لوگ جنگل سے آ گئے تھے، لہٰذا اپنی گوشت کھاؤ، صدقہ دو اور جمع کر کے بھی رکھ سکتے تھے۔ تو دیکھیے یہاں پر من اجل الدافۃ التی دفت علیکم، یہاں پر فرمایا کہ میں نے تمہیں روکا اچانک آ جانے والی جماعت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دفہ کا معنی ہے تیز چلنا، اور دافہ تیز چلنے والی اچانک آنے والی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ یہ صحرائی لوگ قحط زدہ تھے اور بھوک پیاس کی مصیبت سے تنگ آ کر شہر میں چلے آئے تھے، تو اس لیے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال لوگوں کو گوشت کا ذخیرہ کرنے سے روک دیا تھا، تاکہ لوگ ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں اور یہاں پر پھر
अहादीस में आता है, इसमें इसकी वजाहत की गई है कि पहले हुक्म का नस्ख अहादीस में मौजूद है। इसी तरह जमहूर उलमाए किराम और ताबईन और तबा ताबईन का भी यही मजहब है। और इमाम नबवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी यही रिवायत है कि हुर्मत का हुक्म का हाल बाकी है, मनसूख नहीं हुआ, और शायरी में नस्ख यानी मनसूख होने का हुक्म नहीं पहुंचा। तो उसूल का कायदा ये है कि जिन्हें मनसूख का इल्म है, इनका इल्म इन पर हुज्जत है, और इन पर हुज्जत नहीं है, इनको इसका इल्म नहीं हुआ। देखिए, इब्तदा में 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त खाना ये मना था, लेकिन बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दे दी थी कि 3 दिन के बाद भी कुर्बानी के गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मुस्लिम शरीफ में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन वाक़िद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद खाने से मना किया। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया। उन्होंने कहा, सच कहा अब्दुल्लाह ने। मैंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सुना, वो फरमाती है कि देहात के चंद लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईद उल अज़हा में शरीक होने को आए, और वो लोग मुहताज थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के मुआफिक रख लो, बाकी खैरात करो, ताकि ये मुहताज भूखे ना रहे और इनको भी खाने को गोश्त मिले। इसके बाद लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, लोग अपनी कुर्बानी की मुश्कें बनाते थे, इनकी खालों की और इनमें जो है चर्बी उसको पिघलाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा जाता, अब क्या हुआ? लोगों ने अर्ज किया कि आपने कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद खाने से मना फरमाया है, और इससे ये नतीजा निकला कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा रखना जायज नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमको इन मुहताजों की वजह से मना किया था, तो उस वक्त आ गए थे, अब खाओ और रख लो और सजदा कर दो, या फिर तुम्हारी यानी मर्जी पर मुनहसर है। इसी तरह देखिए, हज़रत सलमा बिन अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने तुम में से कुर्बानी की तो तीसरे दिन इस हालत में सुबह करे इसके घर में कुर्बानी के गोश्त में से कुछ भी बाकी ना हो। तो दूसरे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम इस साल भी वही करें जो पिछले साल किया था, तो 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त भी ना रखें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब खाओ, खिलाओ और जमा करो। पिछले साल तो क्योंकि लोग तंगी में थे, इसलिए मैंने चाहा तुम लोग इनकी मुश्किलात में उनकी मदद करो। लिहाजा इन रिवायात से ये साबित हुआ कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा रख सकते हैं। और हदीस मुबारका में ये जो आया यानी जो मुमानियत जिक्र की गई है वो वक्ती तौर पर थी, जो के बाद में मंसूख हो गई। ये हदीस की इबारत देखिए, वो भी क़ाल हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना यज़ीद इब्न ज़ुरैक़ क़ाल हद्दसना ख़ालिद अल-हज़्ज़ाउ अन अबी हुलैही अन नुबैशता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कुन्ना नहयनाकुम अन लुहूमिहा अन तअकुलूहा फौका सलातिन लिकई तसअकुम फ़क़द जाअ अल्लाहु लिस्सअति फ़कुलू वद्दखिरू वत्तजीरू अला व इन्न हाज़िहिल अय्याम अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। अब इसका तर्जुमा देखिए। हज़रत मुबैशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुमको 3 दिन से जायद कुर्बानी का गोश्त रखने से मना फरमाया था, ताकि वो गोश्त सब तक पहुंच जाए। अब अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है तो खाओ और उठा कर भी रखो और सदका करके सवाब भी कमाओ, और याद रखो ये दिन खाने पीने और याद इलाही की है, यानी इन दिनों में रोजा रखना दुरुस्त नहीं है। देखिए यहाँ पर कई तसअकुम फरमाया, यानी इसका मतलब है कि तुम सब लोग मिल जाओ इसमें, यानी मिलजुल कर खाओ पियो। फिर आगे फरमाया अतजीरू, ये लफ्ज जो है अजर से माखूज है, वाक़ियाल से है, यानी इसके मानी है अजर व सवाब हासिल करके। अब हम अगले सबक की तरफ चलते हैं।
अगला सबक है कुर्बानी के जानवर पर शफकत करना, यानी कि बाब रिफ्की ज़बीहता। तो पहले इसकी हदीस देखिए। वबी क़ाल हद्दसना मुस्लिम इब्न इब्राहीम क़ाल हद्दसना शुअबतु अन ख़ालिद अल-हज़्ज़ाई अन अबी किलाबता अन अबी अशअथ अन शद्दाद इब्न औस क़ाल फ़स्लतानी समिअतुहुमा मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह कतबल इहसाना अला कुल्ली शैइन फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनु क़ाल गैरु मुस्लिमिन यक़ूलु फ़अहसिनुल क़ितलता वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुल ज़ब्ह वलयुहिद्द अहदुकुम शफ़क़तहु वलयुरिह ज़बीहतहु। अब हदीस का तर्जुमा देखिए। अबुल अशअश हज़रत शद्दाद बिन औस से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो खसलतों के बारे में सुना है। एक तो ये कि अल्लाह ने तुम पर हर मामले में एहसान को लाजिम किया है, हत्ता के कत्ल में भी। लिहाजा जब तुम किसी को किसास में कत्ल करो तो कत्ल करो उसे अच्छे तरीके से, यानी तरसा तरसा कर या तड़पा तड़पा कर ना मारो, बल्कि इसके कत्ल से जल्द अज जल्द फरागत हासिल करो। दूसरा ये कि जब किसी जानवर को ज़िबा करो तो अच्छी तरह ज़िबा करो, यानी तुम्हें चाहिए कि ज़िबा से पहले छुरी को तेज कर लो और ज़िबा करने में राहत पहुंचाओ। देखिए, इस्लाम एक जामे मजहब होने की दलील ये भी है कि इसने जानवरों के हकूक भी बयान कर दिए। और ऐसा क्यों ना हो, अल्लाह ताला अपने नबी को सरापे रहमत बनाकर भेजा है और अल्लाह ताला का फरमान है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हकूक भी बयान फरमाए, इसलिए बहुत सी अहादीस से ये साबित है कि जानवरों पर एहसान और इनके साथ नरमी और शफकत और रहमत का मामला किया जाए, जो बाज दफा अजर और सवाब के आला दराजात और असबाब मग़फ़िरत के सबब तक पहुंचा देती है। जैसे कि हदीस मुबारका में आता है कि एक सहाबी ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपने ऊंट को पानी पिलाने के लिए हौज में पानी भरता हूँ और दूसरे का ऊंट आकर इसमें से पानी पी लेता है, तो क्या मुझे इस पर भी सवाब मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और सुनो, हर जिंदा और तर जिगर रखने वाले जानवर को खिलाना पिलाना ये लायके अजर है। तो इसी तरह चरिंद परिंद को दाना डालने में भी सदके के बराबर सवाब मिलता है। यानी कि आदमी जो खेती करता है या बाग लगाता है और इसकी खेती और दरख्त से कोई जानवर आकर या परिंदा आकर कुछ खा लेता है या चुग लेता है, तो इसमें भी मालिक को सवाब मिलता है, खास साहिब खेत और दरख्त वाले को इसका इल्म भी ना हो। यानी कि जो मुसलमान कोई दरख्त लगाता है या खेती लगाता है या कोई चिड़िया वगैरह या कोई जानवर इस आदमी के उसमें से आकर खा ले, तो ये इसके लिए सदके का सवाब है। इसी तरह जानवर के ज़िबा करने में भी हमें एहतियात का कहा गया है कि क्योंकि यकीनन अल्लाह ताला ने बाज़ जानवरों को ज़िबा करके इसके गोश्त से फायदा उठाने को जायज करार दिया है। ऐसे जानवरों को ज़िबा करना शरीयत की मंशा के ऐन मुताबिक है, लेकिन इनमें से जो है अगर इनमें कोई जुल्म ज्यादती हो या इनके साथ बुरा सलूक हो तो ये दुरुस्त नहीं है। ज़िबा के सिलसिले में इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद हिदायत फरमाई हैं, चंद आदाब बताए हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम जानवर को ज़िबा करने लगो तो 3 आदाब का ख्याल रखो। एक ये कि अच्छी तरह से ज़िबा करो, दूसरा ये कि ज़िबा से पहले छुरी तेज कर लो, और तीसरा ये कि ज़िबा के जानवर को ठंडा होने दे, इसके बाद इसकी खाल उतारो। फिर कहा कि जानवर को मकामी ज़िबा तक, यानी जिस जगह उसको ज़िबा करना है वहां तक लेके जाने में नरमी के साथ उसके साथ मुआमला किया जाए, उसको बेदर्दी और सख्ती के साथ ना घसीटा जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी को देखा जो एक बकरी को ज़िबा करने के लिए इसकी टांग पकड़कर घसीटता हुआ ले जा रहा था, तो उन्होंने इससे फरमाया वैलका तुदहा इलल मौती कौदन जमीलन, यानी इसको मौत के लिए ले जाओ अच्छे तरीके से। इसी तरह एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना किया जाए क्योंकि इससे इसको तकलीफ होगी। तो फिर फरमाया कि ज़िबा करने वाला जानवर के सामने छुरी भी ना तेज करे। और फिर एक ये भी आदाब है कि ज़िबा के लिए जानवर को बेदर्दी से नहीं गिराना चाहिए, उसको आराम से शफकत से गिराना चाहिए
और ज़िबा करने में भी रहमत और शफ़क़त का पहलू जो है वो मलहूज़ रखना चाहिए। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जानवर को चारा खिलाना और पानी पिलाना किसका क्या हक है? यानी कि जानवर पर सवारी और इस पर बार बर्दारी इंसान का हक है, लेकिन इस बारे में भी शरीयत ने वाज़ेह हिदायत फरमाई है और जानवर के हक में रियायत की है कि जैसे कि जानवर को चारा खिलाकर सवारी करना, जानवर की कुदरत और ताकत से ज्यादा इस पर बोझ ना लादना, बिला जरूरत इसको मारपीट ना करना, ये वो चीजें हैं जिनकी रियायत जरूरी है। अगली हदीस की इबारत देखिए, वबी क़ाल हद्दसना अब्दुल वलीद अत्तयालिसी क़ाल हद्दसना शुअबतु अन हिशाम इब्न ज़ैद क़ाल दखलतु मअ अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलल हकम इब्न अय्यूब फरअ फित्यानन औ ग़िलमानन क़द नसबु दजाजतन यरमूनहा फ़क़ाल अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुस्बरल बहाइम। हजरत हिशाम बिन ज़ैद से रिवायत है कि मैं हजरत अनस बिन मालिक के साथ हकम बिन अय्यूब के पास गया तो देखा कि चंद जवानों ने या ये कि कहा कि चंद गुलामों ने एक मुर्गी को निशाना बना रखा है और इस पर तीर अंदाजी कर रही हैं। ये देखकर हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस बयान फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को इस तरह बांधकर मारने से मना फरमाया है। तो देखिए यहाँ पर क़द नसबु दजाजतन यरमूनहा, इसको कहते हैं यानी मुर्गी को निशाना बनाकर रखा था और इस पर तीर फेंक रहे थे। फिर आगे फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुस्बरल बहाइम, या बहाइम यानी सबरा बहाइम ये है किसी जानवर मसलन किसी मुर्गी को बांधकर इसको सामने बिठाकर इस पर तीर का निशाना बनाया जाए तो ये शरीयत में मना है, क्योंकि ये ज़िबह शरई नहीं है। इस तरह वो जानवर हलाल भी नहीं होता। तो मालूम हुआ कि किसी भी जानदार को, जैसा कि हदीस में भी आया है, यानी किसी भी जानदार को, चाहे वो इंसान हो या हैवान हो या परिंदा हो या कोई दरिंदा वगैरह हो, इसको बिला वजह अजाब और तकलीफ देना ये हराम है। और इस हदीस मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ये जरूरी है। इसमें किसी भी मलामत गर की मलामत या किसी साहिबे इख्तियार और इख्तियार वाले शख्स का खौफ नहीं होना चाहिए। जैसा कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ के चचाजाद भाई जो कि इसके नाइब और हाकिम बसरा हकम बिन अय्यूब जैसे जालिम और सफाक हुक्मरान के सामने ये फरीजा अदा फरमाया कि हकम बिन अय्यूब के मुतालिक ये मारूफ है, यानी उसके बारे में ये मशहूर है, यानी वो अपने चचा जाद हुज्जाज बिन यूसुफ ही की तरह था। वल्लाहु आलम। इसलिए जानवर को बांध कर निशाना लगाने और मुसला करने से, अब यहाँ पर मुसला से मुराद ये है कि जिस जानवर के नाक कान वगैरह काट दिए जाए उसको मुसला करना कहते हैं। तो ये शरीयत में इसकी मुमानियत फरमाई गई है। अब मना करने की वजह ये है कि ये जानवरों को बिला वजह जुल्म और सितम का निशाना बनाना है, और चूंकि ये एक मुसलमान की रहमदिली के ये मुनाफी है, और दूसरा इसलिए मना फरमाया कि ज़िबा करने की बजाय ये कत्ल करना है, और कत्ल करने से जानवर मुर्दार हो जाता है जो कि ग़िज़ा को ज़ाया करने के ज़ुमरे में आता है, और एक ये बुरा तरीका भी है, और इसी तरह ग़िज़ा को ज़ाया करना गुनाह है। और फिर तीर अंदाजी की मशक के नतीजे में इस जानवर की खाल भी नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती है, ये भी माल को ज़ाया करना है जो कि बड़ा गुनाह है। तो अल्लाह पाक हमें शरीयत के तकाजे पूरे करने वाला बनाए, शरीयत पर सही तरह से अमल करने वाला बनाए। आज का सबक हमारा यही मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।